Faith is a bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Rabindranath Tagore, in his Fireflies, a collection of aphorisms. Hello, everybody. I'm welcoming you all to the Union Budget 2021 highlights on Vani Academy. And this is me, Vani Mehra, presenting the highlights to you on the YouTube channel. The risk of not having a lockdown was far too high. And within 48 hours, declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, which was valued at around rupees 2.76 lakh crores, free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to cover 400 million farmers, women, elderly, the poor, and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetable, and fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways, and public transport, everything had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. The finance minister, while presenting her budget, had highlighted the problems that India had faced because of the COVID-19 pandemic, and also highlighted about how 2021 is the year of many important milestones for our history. India is witnessing history, India is witnessing milestones. It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of 1971 India-Pakistan war, and it will be the year of the 8th census of independent India. It will also be India's turn at the BRICS presidency, the year for our Chandrayaan 3 mission, and the Haridwar Mahakumbh. The movement acknowledged how isolating and distancing seem like unsurmountable challenges for a country like ours that has people coming together in times of crisis. It hurt us in many ways, but the speaker was presented to the budget by the finance minister. This budget had mentioned about one of the most important things, that is Atmanirbhar Bharat. आत्मनिर्भरता is not a new idea. ये एक नया आइडिया नहीं है. पुराने हिंदुस्तान में, ancient India में, it was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. Now that we are part of international groupings such as G20 and BRICS, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts. The proposal in Part A will further strengthen the Sankalp of Nation First, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. The Union Budget 2021, highlighting the Atmanirbhar Bharat ka budget, talks about allocation of 3,768 crores for India's first digital census. Now that we all know that we are already connected digitally, so yes, India's first digital census, for that this allocation of amount has been done. Not to forget, in this budget, the National Rail Plan, there is an aim to develop adequate rail infrastructure by 2030, wherein they are focusing on increase of modal share of railway in freight from 27 to 45%, 100% electrification of broad gauge routes by 2023, and indigenously developed automatic train protection system to be launched. बिकॉज हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएं और हिंदुस्तान अपनी कैपेबिलिटीज को खुद बढ़ाए, इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो ट्रेन प्रोटेक्शन का सिस्टम है वो इंडाइजीनियसली हमारे देश के ही अंदर डेवलप किया जाए. रिफॉर्म्स की बात करें तो देखिए, रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, सेक्टर स्कीम की बात की गई है, विच विल बी आउटलेड फॉर रुपीज अप्रोक्सीमेटली 3,500,984 बेसिकली crore over 5 years. उज्ज्वला स्कीम 1 करोड़ बेनिफिशरीज को एड ऑन करेगी और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ ब्राउन फील्ड इंफ्रा एसेट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए.
जैसे कि हम सब जानते हैं कि गैस नेटवर्क डीपन करने की कोशिश की जा रही है। आप सब जानते होंगे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के बारे में। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बात करती रहती है, लाइक तापी प्रोजेक्ट, तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात करती है, जहां हम कनेक्ट करना चाहते हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को। तो गैस नेटवर्क को डीपन करने के लिए जो उज्ज्वला है, इसे एक्सटेंड किया जाएगा 1 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशरीज पे, और 100 से भी ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स होगी उन्हें ऐड किया जाएगा टू द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। गैस पाइपलाइन जेएनके में भी अब ली जाएगी, बिकॉज आप सब जानते हैं कि जेएनके इज अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया नाउ, इसलिए वहां पे भी इन सब चीज़ों को एक्सटेंड किया जाएगा। इंडिया चाहता है कि वो अपने इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए, ऑपरेटर टू बी सेटअप टू फैसिलिटेट बुक एंड ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑन ओपन एक्सेस बेसिस, कि आप आराम से बुक भी कर सकते हो और फिर आप एक्सेस भी कर सकते हो। मेंटेनिंग अ हेल्दी फिस्कल, states are allowed a normal borrowing ceiling 4% of GSDP for 2021-2022. Rupees 1,18,452 crore as revenue deficit grant to 17 states in 2021-2022, और जो फिजिकल डेफिसिट है वो एक्सपेक्टेड है टू ड्रॉप फ्रॉम 9.5% इन 2021 to 22 to 6.8% इन 21 to 22। तो इसका मतलब है कि अब हम अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी बताना चाहूंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फिजिकल डेफिसिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, जो डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू मतलब जो आपके पास पैसा आया, एक्सपेंडिचर मतलब जो आपने खर्चा किया गवर्नमेंट का, उसे हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। जब टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस होता है उसे फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। ये इंडिकेशन है कि जो टोटल बोरोइंग्स है नीडेड बाय द गवर्नमेंट, उस चीज का ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर हम जाने कि भाई फिजिकल डेफिसिट अच्छा है कि क्या फिजिकल डेफिसिट बुरा है, तो अगर बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होता है तो इट कैन ऑल्सो बी गुड फॉर द इकोनॉमी। अगर मनी स्पेंड गोज इनटू द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट, जैसे हम हाईवेज, रोडवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन पे पैसा लगाते हैं तो ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है और रिजल्ट करता है जॉब क्रिएशन पे, तो यहाँ पे अच्छा है। बट अगर बर्बाद हो रहा है पैसा तब अच्छा नहीं है। और जहां तक बात आती है दूसरी टर्म की, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे सब लोग, वो है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? देखिए, ये इंडिकेट करता है व्हेन गवर्नमेंट डजंट हैव सफिशिएंट रेवेन्यू फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स के लिए ही इनफ पैसे नहीं निकाल पा रही है। अदर वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग मोर देन इट अर्न, इट रिजल्ट्स इन रेवेन्यू डेफिसिट। जब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है उसकी रेवेन्यू से भी बहुत ज्यादा, तो उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट टर्म बोलते हैं। तो सरकार ने सोचा कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसका हमने कम से कम 1,18,452 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया है 17 स्टेट्स को। और जो फिजिकल जो हमारा डेफिसिट है उसे हम ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे 9.5 से कम 6.8%। आई होप आपको समझ आ गया होगा सबको। इसी के साथ हम देख सकते हैं गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो नीचे आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन, वो आप लोगों के लिए हमने लाइव चैट का ऑप्शन अभी एक्सेसिबल रखा हुआ है। एंड वी विल ट्राई अ लेवल बेस्ट कि हम आपकी जितने भी क्वेरीज हैं उन्हें चैट के थ्रू एड्रेस कर सके। रीज़न ये है कि देखिए, अगर मैं क्वेरी अभी आपकी डायरेक्टली लेती जाऊंगी तो वीडियो पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको जो भी पूछना है यू कैन आस्क इन योर लाइव चैट एंड वील कीप आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज। बजट 2021 प्रोक्योरमेंट की बात करता है एट एमएसपी। देखिए, सबसे बड़ी जो हम फार्मर्स की इस टाइम पे जो बात चल रही है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फार्म लॉज आए हैं, 3 फार्म लॉज आए हैं, उनका भी एनालिसिस हम एक वीडियो डालेंगे। तो किस तरह से एमएसपी के प्रोक्योरमेंट की बात की गई है बजट पे। अब कैसे वीट का, जैसे 2013 से 14 का अगर आप देख सकते हैं तो 33,874 करोड़ था। 19 से 20 में 62,802 करोड़, और 20 से 21 में ₹75,060 करोड़ हो गया वीट का। सिमिलरली जब आप पैडी की बात करते हैं तो 2013 से अगर आप 2021 में आएंगे तो ₹1.72 लाख करोड़ एस्टिमेटेड, बिकॉज प्रोक्योरमेंट इज ऑन गोइंग। अगर आप पल्सेस की बात करेंगे तो आप वो भी आप देख सकते हैं कि कहाँ 236 करोड़ था और कहाँ 10,000 पहुंच गया है करोड़।
और कॉटन में 90 करोड़ से किस तरह से ओवर 25,000 करोड़ पे पहुंच गया प्रोक्योरमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए 6 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत का बजट। देखिए, पहला है हेल्थ एंड वेलबींग। जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो हमारी हेल्थ है, ये हम सब जानते हैं। वी ऑल सीन दैट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 वी सीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ। सो हेल्थ एंड वेलबींग इज द प्रायोरिटी। मैं इसकी कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सुंदर चीज आपको बताना चाहूंगी। आई होप यू पीपल एंजॉय लिसनिंग टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, कि किस तरह से बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि कैसे हम हेल्थ और वेलबींग पे फोकस कर सकते हैं अपनी कंट्री में लोगों की, और किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ऑलरेडी द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग आयुष्मान भारत एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट अब हम देखते हैं कि हेल्थ पे कैसे ध्यान देने का एग्जैक्टली गवर्नमेंट सोच रही है। देखिए, जब हम एट द आउटसेट सोचते हैं, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना, वो काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया बजट में। और अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो दे एब्जॉर्ब मोर। तो हमें अब ज़रूरत है कि हम प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलबींग, इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दें। अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना विल बी लॉन्च विद एन outlay of around 64,180 करोड़ over 6 years। ये डेवलप करेगी कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर की, स्ट्रेंथन करेगी नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, क्रिएट करेगी नए इंस्टीट्यूशंस को, और क्योर प्रोवाइड करेंगी और इमर्जिंग डिजीजेस में। इट विल बी एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन एंड द मेन इंटरवेंशन विल बी, जैसे 17,000 17,788 रूरल एंड 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। हेल्थ लैब्स की बात की गई है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स की बात की है, बहुत सारी चीज़ों की। दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चीज़ के ऊपर भी इक्वली फोकस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है कि किस तरह से मैक्सिमम इंक्लूजन हो सके लोगों की, और किस तरह से एक डेवलपमेंट मॉडल में एवरीबडी इज इंक्लूडेड इनटू इट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रायोरिटीज। ह्यूमन कैपिटल, how we can also put in our people, the youngest population that we have in the world, into the right things। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया होगा कि कैसे फोकस किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, बिकॉज इनोवेशन इज द नीड ऑफ द आवर। So how innovation and research and development will help, and minimum government and maximum governance, I think that is the motto also। So let's talk what is in it for migrants and laborers। मैंने काफ़ी आगे शफल आगे पीछे शफल की है अपनी स्लाइड्स के अंदर, बिकॉज मैं एक इन्फॉर्मेशन को रिटोरिक नहीं रखना चाहती थी, तो मैं चाहती हूँ कि हम मिक्सचर ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ें। गाइस, आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है लॉन्च वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम फॉर बेनिफिशरीज टू क्लेम राशन एनीवेयर इन द कंट्री, माइग्रेंट वर्कर्स टू बेनिफिट द मोस्ट। जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कोविड के टाइम पे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि उन्हें अपने अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में जाना पड़ा। तो उस टाइम पे उनके लिए जो राशन कार्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स एक्ट करता है, बिकॉज देख उनको कहीं भी राशन मिल सकता है पूरी कंट्री में। Portal for migrant workers to collect relevant information to formulate scheme for benefit of the workers। एक पोर्टल बनाने की कोशिश की जाएगी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जहां उनकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी ताकि स्कीम्स बनाई जा सके उनके बेनिफिट के लिए। 4 लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एक्सटेंड करने की बात की गई। कवरेज अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू ऑल द वर्कर्स। Women will be allowed to work in all categories and also in the night shift with adequate protection। This is very important। इंक्लूसिव अगर हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो तो इंक्लूसिव रोल देना भी इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस बर्डन ऑन एम्प्लॉयर्स विल बी रिड्यूस्ड विद सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग एंड ऑनलाइन रिटर्न्स, और जो इंश्योर करेंगे टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन आर डिपॉजिटेड ऑन टाइम। जो लेट डिपॉजिट है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के बाय द एम्प्लॉयर शैल नेवर बी अलाउड एज डिडक्शन टू द एम्प्लॉयर। रिड्यूसिंग कंप्लाइंस बर्डन फॉर डायरेक्ट टैक्स पे, जितने भी लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं उनके लिए क्या सीन है। देखिए, रिलीफ दिया गया सीनियर सिटीजन्स को। सीनियर सिटीजन्स हु ओनली हैव पेंशन, जिनके पास सिर्फ पेंशन है और इंटरेस्ट इनकम है, और एंड इंटरेस्ट इनकम डू नॉट हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जो इंटरेस्ट इनकम ले रहे हैं या अगर वो पेंशन पे कर रहे हैं तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न देने की जरूरत नहीं है।
एनआरआई को रिलैक्सेशन है, लाइक नोटिफाइंग रूल्स फॉर रिमूविंग हार्डशिप टू एनआरआईज रिगार्डिंग their foreign retirement accounts due to mismatch in taxation period. रिलीफ फॉर डिविडेंड, जो डिविडेंड पेमेंट है टू आरईआईटी या इनविट एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम टीडीएस, एंड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ऑन डिविडेंड इनकम शैल अराइज ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और स्मॉल ट्रस्ट वालों को भी एग्जेम्पशन दी गई है, लाइक लिमिट ऑफ एनुअल रिसीप्ट रिवाइज फ्रॉम ₹1 करोड़ टू ₹5 करोड़, जो स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट है रनिंग स्मॉल स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिला है, या कह सकते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है इस बजट में। देखिए, जो स्वामित्व स्कीम है उसके बारे में बात की गई, वो जो प्रोवाइड करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू प्रॉपर्टी ओनर्स इन विलेजेस विल नाउ कवर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। स्वामित्व के अंदर कि सारी यूटीज और स्टेट्स को इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर। जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, इट इज टू बी एक्सटेंडेड टू 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है, दे आर गोइंग टू बी मेड अवेलेबल टू एपीएमसीज फॉर ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एंड 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विद ई नैम। गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनमें से कोई भी टर्म या स्कीम आप नहीं जानते हो, कुछ भी आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे एंड विल डेफिनेटली पुट इट ऑन द प्लेटफॉर्म। Committed to welfare of farmers, agriculture credit target to be enhanced to ₹16.5 lakh crore with focus on increasing credit flows to animal husbandry, dairy and fisheries. Rural infrastructure development fund to be enhanced to ₹40,000 crore, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसे 40,000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा, और माइक्रो इरिगेशन फंड को डबल किया जाएगा टू ₹10,000 करोड़। अगर हम बात करें अकाउंटेबल एंड एफिशिएंट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, देखिए टैक्स डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो उसे सॉल्व करने के लिए भी वी नीड अ रेजोल्यूशन और वी नीड अ मैकेनिज्म। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी टैक्स पेयर्स के लिए, जिसकी विद अ टैक्सेबल इनकम अप टू ₹50 लाख एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू ₹10 लाख टू इंश्योर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फेसलेस आई टैट दिया जाएगा, इस्टेब्लिश नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल सेंटर। जितना भी कम्युनिकेशन है बिटवीन ट्राइब्यूनल एंड अपीलेंट शैल बी इलेक्ट्रॉनिक, वेयर पर्सनल हियरिंग इज नीडेड इट शैल बी डन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस चाहिए तो अथॉरिटी को रिप्लेस करना पड़ेगा फॉर एडवांस रूलिंग्स with a board for advanced ruling and provide appeal against the order of such board to the high court. तो बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना, अगर कोई केस फंस गया तो कोर्ट पे लेके जाना, दिस इज समथिंग विच इज बीइंग डन फॉर एफिशिएंट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हेल्थ और वेलबींग का जैसे मैंने आपको बताया कैसे फोकस किया जा रहा है, फिर भी देख सकते हैं जैसे ओवरऑल हेल्थ स्पेंड राइजेस बाय वूपिंग 137%, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, पोषण लॉन्च टू बूस्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे फोकस देने के लिए पोषण अभियान आया था, तो पोषण 2.0 विल बी लॉन्च। ₹35,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर वैक्सीनेशन, एंड 2,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन टू बी रूल्ड आउट अक्रॉस इंडिया। सो गाइस, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, रेलवेज ऑन द हाई ग्रोथ ट्रैक। देखिए, रिकॉर्ड सम आया है ₹1.1 लाख करोड़ फॉर रेलवेज एलोकेटेड, एंड नेशनल रेल प्लान बनाया गया है 2030 के लिए फॉर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। हम भी चाहते हैं हमारी रेलवेज अच्छी हो, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड अ फ्लाइट ट्रैवल। सो 3 न्यू फ्रेट कॉरिडोर्स, जैसे मैं बता रही हूँ एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड अ फ्लाइट ट्रैवल, तो फ्लाइट ट्रैवल करना एवरीवन कांट अफोर्ड, सो रेलवेज हैव टू बी फोकस्ड। 3 नए फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की गई, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और ब्रॉड गॉज रेल रूट्स की बात की गई, विस्टा डोम कोचेस की बात की गई फॉर बेटर टूरिस्ट व्यूइंग ऑन स्पेसिफिक रूट्स। जैसे कुछ बहुत अच्छा व्यू होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया पे हम जाते हो, बहुत सुंदर व्यू होता है, तो वो भी आप देख सकते हो, यू कैन लुक आउट एट द व्यू। एंड हाई डेंसिटी रूट्स टू बी गिवन इंडाइजिनस ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम टू प्रिवेंट कोलिशन। इन द मीन वाइल, अगर आप लोग यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon so that you people get the updates of all the videos. Now, infrastructure for a new India. देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक्सपैंड की गई टू 7,400 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 2,000 प्लस प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सैंक्शन। द बिल इज गोइंग टू सेट अप अ डीएफआई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कैपिटल एलोकेशन 20,000 करोड़ की टू इंश्योर लैंडिंग ऑफ ₹5 लाख करोड़।
जो FPI based debt financing it is to be enabled, और railway assets and airports of tier 2 and tier 3 cities will also be monetized for management and operational purposes. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, और उसे डेवलप करना इज द इम्पेरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो डेफिनेटली लोग हमारी कंट्री में भी आना पसंद करेंगे, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, ट्रैवल करना पसंद करेंगे, टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा. सो इन द ईयर 2019 आई ट्रैवल टू दुबई, और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है इट इज़ रनिंग मोस्टली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन विजिट इन दुबई. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पे आप क्या देखने जाओगे? तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है, लाइक बुर्ज खलीफा, लार्जेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड इज बिल्ड ओवर देयर. Not only that, the largest aquarium of the world is built over there. Largest mall of the world is built over there. So guys, these are the tourist attraction. If we have better infrastructure, जैसे हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है हमारी कंट्री में सरदार वल्लभ भाई पटेल का, all of the people go and look at it, everybody goes, it becomes like a tourist attraction, also makes the process easy and gives jobs to the people. Ease certainty and transparency for taxpayers. देखिए रिडक्शन दिया गया इन टाइम फॉर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, टाइम को हाफ कर दिया गया टाइम लिमिट को फॉर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट टू 3 years टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी. अगर सीरियस टैक्स इवेजन केस है कोई, तो ओनली वेयर देयर इज एविडेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम ऑफ ₹50 लाख और मोर इन अ ईयर, तो जो असेसमेंट है इट विल बी रीओपन अप टू 10 years आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. इनहैंस प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न किया गया टू ईज फिलिंग ऑफ रिटर्न, डिटेल्स ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, dividend income and interest from banks, post office, etc. All of this will be pre-filled in the returns. ये रिटर्न में पहले से फिल किया जाएगा ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या एनपीए ऐसा कोई रिस्क ना रहे. गाइस, विमेन के लिए क्या है बजट में, लेट्स अंडरस्टैंड. उज्ज्वला स्कीम की बात की गई विच विल बी एक्सटेंडेड टू कवर 1 crore मोर बेनिफिशरीज. Women will be allowed to work in all categories and also in the night shift with adequate protection, जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी. New scheme for the welfare of tea workers of Assam and West Bengal, focusing especially on women and their children. On National Nursing and Midwifery Commission बनाई जाएगी, bill बनाया जाएगा, which will be introduced very soon. And guys, this is one of the most important things to talk about, the vaccination. We all know कि कोरोना के कारण कितना लोगों ने सफ़र किया है, और वैक्सीन जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. But how are we looking forward to empowering the human capital? Impacting health outcome holistically. देखिए वाटर जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन अर्बन का आउटले किया है ₹2.79 lakh over 5 years. And it takes safe drinking water to 2.86 crore households. Clean air in cities में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन वर्थ ₹1.41 lakh for cleaner cities. And 42 cities with million plus population get ₹2,217 crore to tackle pollution. Stupendous increase in the payment made to farmers. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरह से फार्मर्स का जो इनकम का वो है 2013 से कैसे इंक्रीज करने की बात की गई है इन द आत्मनिर्भर भारत का बजट. इंकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे हमने पहले बात की थी कि गवर्नमेंट का क्या फोकस है, तो R&D करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसका आउटले रखा गया 50,000 crore ओवर 5 years टू स्ट्रेंथन ओवरऑल रिसर्च इकोसिस्टम. ₹1,500 crore फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू प्रमोट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट. नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन टू मेक अवेलेबल वेल्थ ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज ऑन द इंटरनेट इन मेजर इंडियन लैंग्वेजेस. इंटरनेट पे हम सब लोग यूटिलाइज तो करने आ गए, बट लोगों को डिजिटल अवेयरनेस किसने दी? किसी ने नहीं दी. डीप ओशन मिशन जिसका बजट आउटले होगा मोर देन 4,000 crore ओवर 5 years टू बी लॉन्च फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन. ये सारी चीजें अलॉन्ग विद फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस लॉन्च स्टेटेड फॉर December 2021 एज पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन. This will help to encourage R&D and innovation. Guys, thank you so much for joining right now. And all those who are commenting or will be commenting in the comment section, the team will take care of it. I'm personally trying to reply to all the queries that would be coming up. Please keep replying in the live chat. Also, you can comment after the video gets over anytime. Subscribe to the channel. And guys, please let us know what courses do you want on Van Academy. We are putting forward this initiative for everybody across the country.
Everybody who wants to learn, who wants to make learning effective, we are putting up this platform active for making accessible education and bringing socio-economic and educational changes in the country. Help us on this initiative, guys. Try to move this video maximum as you can. Union budget building a smarter urban India. Jal Jeevan Mission Urban will be implemented over 5 years in an outlay of rupees 2.87 lakh crore. Like I already told you. और अर्बन स्वच्छ भारत मिशन जो है उस पर भी फोकस है गवर्नमेंट का. वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स. अब हम चाहते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल हो ताकि पोल्यूशन एमिशन को हम कंट्रोल कर सकें. मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो for the Tier 2 and peripherals of Tier 1 cities. This is building a smarter urban India. अगर मैं बात करूँ टैक्स इंसेंटिव टू आईएफएससी अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब, तो उसके अंदर क्या गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है. गवर्नमेंट कहती है टैक्स हॉलीडे फॉर कैपिटल गेन फ्रॉम इनकम ऑफ एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज. जो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज है, जो एयरक्राफ्ट को बेसिकली लीज आउट करती है, उनका जो है उन्हें टैक्स हॉलीडे फॉर कैपिटल गेन दिया जाएगा जो उनकी इनकम होगी उससे. Tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessons. Tax incentive for relocating foreign funds in IFSC. Tax exemption to the investment division of foreign bank located in IFSC. And support दिया जाएगा for development of a world-class fintech hub at GIFT IFSC. Fintech is basically financial and technical services coming together. This reminds me of government's objective of minimum government and maximum governance. Treasury single account system extend किया जाएगा for universal application from 2021 to 22, enabling autonomous bodies to directly draw funds from government accounts, saving interest cost. On the recommendation of 15th Finance Commission, government has also undertaken a detailed exercise to rationalize and bring down the number of centrally sponsored schemes to consolidate outflows for better impact. To further streamline the ease of doing business, जिस पे गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है for cooperatives, government will set up a separate administrative structure for them. Housing for all. Additional deduction of interest amounting to rupees 1.5 lakh for loans taken up till 31st March 2022 for the purchase of an affordable house. इंटरेस्ट घटाने की बात की गई. सप्लाई ऑफ हाउसेस को इंक्रीज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हाउसेस, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कैन अवेल अ टैक्स हॉलीडे फॉर 1 more year टिल 31st March 2022. और टैक्स एग्जेम्पशन दी जाएगी फॉर नोटिफाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स टू प्रमोट सप्लाई ऑफ हाउसेस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स. What's in it for me like youth? So, Apprenticeship Act to be reviewed to enhance apprenticeship opportunities for our youth. जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये रीअलाइन की जाएगी फॉर प्रोवाइडिंग पोस्ट एजुकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इंजीनियरिंग के लिए, जिसका जो आउटले होगा वो ₹3,000 करोड़ होगा. Agreements of the type already made with UAE and Japan for skilling and training will be extended to other countries. और जो एलिजिबिलिटी है फॉर क्लेमिंग टैक्स हॉलीडे जैसे स्टार्टअप्स के लिए वो एक्सटेंड की जाएगी टिल 1 more year टिल 31st March 2022. इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, आजकल आप बहुत सारे स्टार्टअप देख रहे होंगे, तो जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप इज एक्सटेंडेड बाय 1 more year. फार्मर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, so you can read this and I'll move to the next slide now. Holistic approach to healthcare. The budget outlay for health and well-being is increased to rupees 2,23,846 crore. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. एंड मैंने ये भी बताया कि नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो कमीशन बिल है उसको भी इंट्रोड्यूस करने की बात की गई टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन द नर्सिंग प्रोफेशन ऑल्सो. What about the vaccination, the empowering of human capital, social security for social welfare? देखिए, 1 nation 1 राशन कार्ड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स की जरूरत तो है, साथ में हमें मिनिमम वेजेस की जरूरत है फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स.
coverage under ESIC for all workers, and adequate protection to women workers in night shift. We also need financial reform for accelerating economy in post-COVID world. So what do we do? World class fintech hub बनाने की कोशिश, permanent institutional framework for corporate bond market बनाने की कोशिश, investor charter as a right across all financial products, and we have to amend the Insurance Act 1938 to increase the FDI limit from 49% to 74% with safeguards. And adding strength to industry in post-COVID era. Absolutely, industries have suffered a lot. PLI scheme worth 1.97 lakh crore to create global champions in 13 sectors in next 5 years, starting financial year 2021-22. Not only that, NIP pipeline extended to 7,400 projects. Mitra scheme to create world-class infrastructure for global champion in textile sector, leading to 7 textile parks in 3 years. And guys, the Union Budget 2021 talks about the outlay for health is increased. This is the most amazing thing. I put my picture here because I feel we require this to do. We require to increase the outlay in health. You can just look at the figure now, like 2,23,846 crore, an increase of 130%, 137% relative to the previous year's budget is something that's definitely required. We require to put our effort and energy towards health infrastructure, health sector. We've realized कि health पे ध्यान देने की कितनी ज़रूरत है. Augmenting road infrastructure pathway to growth. Enhanced outlay की ज़रूरत है rupees 1,18,101 crore for Ministry of Road Transport and Highway, of which rupees 1,08,250 crore is for capital, the highest ever. 3,500 km of national highway works in Tamil Nadu at an investment of rupees 1.3 lakh crore. 1100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे वर्क करेगा केरला में एट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 65,000 करोड़. 675 किलोमीटर का हाईवे इन वेस्ट बंगाल ऑफ 25,000 करोड़. तो आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ध्यान दिया जा रहा है. और भी हम काम करने वाले फॉर नेशनल हाईवेज जो असम में काम करेगा इन द कमिंग 3 years. गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग की मेकिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव. जो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स है मित्रा, जिसकी मित्रा स्कीम की मैंने बात की थी, टू बी लॉन्च. 60 टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश ओवर 3 years और ये इनेबल करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने में, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट. तो बेसिक कस्टम ड्यूटियां ऑन यू कैन से द कैप्रोलैक्टम, नाइलन, चिप्स, इन सब के ऊपर फाइबर एंड yarn uniformly is reduced to 5% to help the textile industry, MSMEs and the exports. So Modi government has announced the new scrappage policy, जिसका मतलब कि हम व्हीकल और पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे बाय 30% और इसके अंदर हम कमर्शियल व्हीकल्स जो 15 साल पुराने हैं और पर्सनल व्हीकल्स जो 20 साल पुराने हैं उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा. Currently 51 lakh light motor vehicles are 20 years old और 49 lakh medium and heavy vehicles are 15 years old. तो अब इन्हें स्क्रैपिंग करने की कोशिश की जाएगी. We'll try to reduce the vehicle air pollution by 25 to 30%. A brilliant decision that will not just boost the auto sector because people will buy new vehicles but will also help in preserving the environment. That's great. Reform raising ease of compliance. देखिए बहुत सारे senior citizens above 75 years of age who are exempted from filling income tax return. That's great. That's again a very good initiative. Amendment to the DICGC Act for easy and time-bound access to deposits. जितना भी communication है between IT tribunal and appellate to be faceless. Details of capital gains, dividend income, interest from banks, etc. to come pre-filled in IT returns. I think I've talked about the global financial hub. High infrastructure focus for high growth. ये तो जरूरी है ही. DFI to act as one-stop shop for rupees 5 lakh crore worth infra financing needs. हाईएस्ट एवर आउटले दिया गया है 1.18 लाख करोड़ का कि हम रोड कनेक्टिविटी को अब इम्प्रूव करें और नेशनल रेल प्लान को भी 2030 तक के लिए किया गया फॉर अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम.
18,000 crore to enhance ease of mobility in urban areas. हाइड्रोजन एनर्जी मिशन टू रेवोल्यूशनाइज एनर्जी सेक्टर, एनर्जी पे भी फोकस करने की कोशिश की गई. सो दैट्स अ ग्रेट मूव. नॉट ओनली दैट, वी नीड रिफॉर्म्स अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज. जैसे हम डीक्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं ऑफ एलएलपी एक्ट टू ब्रिंग रिलीफ टू बिजनेसेस, restriction on paid up capital and turnover of one person companies removed. जो ऑडिट एक्सपेंशन लिमिट है, इट इज एनहांस्ड ऑन टर्नओवर फ्रॉम ₹5 crore to 10 crore. एंड जो रैशनलाइजिंग ट्राइब्यूनल्स फॉर स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस. I think I've talked about this one, and this one also is done. Nutrition and clean water supply, जिसके अंदर हम पोषण अभियान 2.0 और जल जीवन मिशन के बारे में बात कर रहे हैं. इंटेंसिफाइंग ऑफ स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव द नेशनल न्यूट्रिशनल आउटकम अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ बीपीसीएल, एयर इंडिया और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड to be completed in 2021-22. Other than IDBI Bank, 2 public sector banks and 1 general insurance company will be privatized. IPO of LIC in 2021 to 22 and proposed to relax the condition regarding carry forward of loss for disinvestment or disinvested PSU in amalgamation. ताकि हम प्रमोट करें स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इट इज प्रपोज टू डीम द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय पीएसयू टू द रिजल्टिंग कंपनी एज टैक्स न्यूट्रल. स्ट्रेस एसेट रेजोल्यूशन, देखिए अगर कोई एसेट रेजोल्यूशन है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी वुड बी सेटअप. ये क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे. दे विल टेक ओवर द एग्जिस्टिंग स्ट्रेस डेप्ट and then manage and dispose of the asset to alternate investment funds and other potential investors. साथ में कंसोलिडेट करेंगे फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स और रिकैपिटलाइजेशन करेंगे कम से कम ₹20,000 करोड़ अनाउंस्ड इन 2021-2022. I think we've talked about this also. Yes. So guys, now हमने बात की है बहुत सारी चीज़ों के बारे में. आई एम श्योर यू पीपल आर लाइक, ओ माई गॉड वीएम व्हाट इज दिस, आपने इतना कुछ तो बता दिया, बट व्हाट आर वी गोइंग टू रिमेंबर, हाउ आर वी गोइंग टू रिमेंबर. सो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड द हाइलाइट्स ऑफ द बजट राइट नाउ. आई वुड ट्राई टू डू वन थिंग, दैट पेपर वाइज आई कैन ब्रिंग टू यू पीपल सर्टेन MCQs and questions so that you understand that what all things can be asked from the budget. I mean, everything will not be asked, but this is the overall document and conclusive document that I've tried to share. I'll try also to share with you the link of the budget speech of the finance minister in the description box. साथ में what I'm going to try doing is, guys, I will also try to launch a few series. So we are launching a new series. This is an announcement. After 1 week, that is, we are launching a new series around 7th of February on Vani Academy. Now, what is the series about? हम लोग टेस्ट करने वाले हैं you people for the MCQs. बेसिकली आपने बहुत जगह देखा होगा कि MCQs को डायरेक्टली पढ़ाया जाता है, सॉल्व किया जाता है. बट आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर ऑल माय एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग माय क्लासेस एनीवेयर. लेट मी टेल यू गाइज, हम क्या करेंगे, आई विल बी पुटिंग अप क्वेश्चंस फॉर यू पीपल and I'll be putting it like a test for you, and then you'll get the solutions immediately. And after that, we people can take up your doubts also. In the doubt session, I'll take your ask me anything session, so that आप लोग मुझसे डायरेक्ट डाउट पूछ सको. तो हम ऐसे लाइक वील स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ ऑन यूट्यूब. यू हैव टू बी लॉयल इनफ कि आप इमीडिएटली उन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो अपने किसी पेपर पे, OMR शीट पे, और उसके बाद जब हम वीडियो एनालिसिस के डालेंगे तो आप एनालाइज करोगे अपनी मिस्टेक्स कि आपने क्या क्या गलतियां की, और उससे आपको बहुत हेल्प होगा इन योर UPSC प्रिपरेशन इफ यू आर गिविंग प्रीलिम्स 21, 2022, 23, whatever. Guys, if you are preparing for UPSC civil services, banking, SSC, state PCS, any examination, and you want me to help you out with proper guidance, mentorship, you want me to provide you proper help, you want me to provide you material, you want to study from me, you want to study and complete general studies, you want to complete optional, that is sociology, or if you want to complete anything, you can just WhatsApp me
on this number, that is 62838179117. This is the WhatsApp that I'm dealing with directly. You can subscribe to the YouTube channel for all the upcoming videos that we are putting. You can go on Facebook and search Vani Academy. You'll find my Facebook page and group. On WhatsApp, you can message me. And you can also follow my Instagram handle of Vani Academy. Guys, you have to support this initiative so that we can reach to maximum audience. Also, at the same time, guys, let me tell you that I'll be bringing up more courses on the platform. Only few people can suggest me. We are also running a DNA analysis on Vani Academy, which comes live at 10 o'clock. Please watch the DNA analysis. It's absolutely amazing. And also at the same time, guys, we are launching a new series for Indian polity. We are launching a new series for all my dear students for history. We are starting courses on Hindi, English, everything. Stay tuned on the Telegram channel of Vani Academy also. You can also search my name Vani Mehra on Telegram, and there's a group you can follow where there are approximately 2400 students. So you can join that. और आपको कुछ भी पूछना है, just ask me in the live chat. I'll reply to you. Ask me in the comment section. I'll reply to you. And guys, thank you so much for all your love for the video. Please tell me whichever video you want me to make next. We'll try to come up with those videos. Thank you. Take care. And all the best. I'll see you up with the next video. Do just share this video to the maximum. Thank you, guys.